Good morning, all of you. So today I welcome you all Sanskriti virtual class of class 12th, and the topic of today's class is solubility of solid in liquid. Yesterday we are talking about the solubility of gas in liquid. मतलब हम पानी में गैस को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, but now I am trying to dissolve any solid particle in water. मैं किसी सॉलिड पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व करने की बात कर रही हूँ. मीन्स टुडे द टॉपिक इज सॉलिड एंड लिक्विड. Before I start the topic solid and liquid, I would like to explain the meaning of solubility to you. What is solubility? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of the solvent. Means एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ही एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्सअप हो सकता है. इफ आई वांट टू से दैट कि एक ग्लास वाटर है, उस एक ग्लास वाटर में इफ आई ऐड 4 स्पून ऑफ शुगर, so is it possible that all sugar particles will dissolve in this one glass of water? No, this is not possible. कुछ पार्ट ऑफ शुगर तो डिजॉल्व हो जाएगा, बट रेस्ट विल गेट डिपॉजिट इन द लेयर, है ना, लेयर में डिपॉजिट हो जाएगा. बिकॉज वाई? बिकॉज here in the definition it is mentioned that the substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. एक लिमिट होती है सॉल्वेंट की भी सॉल्यूट को अपने आप में मिक्स करने की, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को मिक्स नहीं करता. दैट इज द थिंग विच कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं जब तक जिस अमाउंट तक वो घोल लेता है. नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट सॉलिड इन लिक्विड. मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. कैसे? तो yesterday we studied in the solubility of gas in liquid about 3 terms: nature of solute, then temperature and pressure. And Henry Law defined the term pressure very impressively, that when pressure increase that solubility also increase, and this he explained. But what about this in solid case? What happened in solid case? In solid case also the solid nature will depend. कैसे? You can see example is written that salt is dissolved in water but naphthalene is not able to dissolve in water. Salt cannot dissolve in benzene but naphthalene can dissolve in benzene. Why is it so? ऐसा क्यों? Yesterday I am talking about polar and non-polar region. You can see there what is here written, like dissolve like. मतलब यहाँ पर जो जैसा है वो उसको वैसा ही पसंद करेगा. जैसे मैं हूँ, इन योर ऑल्सो तुम्हारे साथ भी होता है. अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें अच्छे लोग पसंद आएंगे, तुम्हें कोई चीज़ शैतानी करने वाले लोग हैं तो शैतानी करने वाले बच्चे पसंद आएंगे. सो हियर ऑल्सो दीज कंपाउंड्स आर लाइकिंग दोज ओनली हु आर लाइक देम. उनको ही लाइक करते हैं जो उनके जैसे हैं. जैसे NaCl है, इट इज़ ए पोलर कंपाउंड, सो इट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर. बट naphthalene इज नॉन पोलर कंपाउंड, so he is not able to dissolve in water because water is polar. That's why naphthalene can dissolve in benzene easily, because this benzene is non-polar compound. Okay, now we are moving forward to the next thing, that is temperature term. In this, when we talk about the solubility of solid in liquid, the temperature plays a very important role. What important it plays? It plays that when we want to dissolve any solute into the solvent, we have to give some energy to it so that it can form solution. Okay, so endothermic reaction. Okay, so if I talk about endothermic reaction, so endothermic reaction क्या होती है?
जिसमें हमें किसी को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल एच? द वैल्यू ऑफ डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे पता है कि इन यस्टरडे वी आर सेइंग द एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। सो वो एंथैल्पी नेगेटिव थी, मतलब वो कौन सी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक, जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही थी। सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी देते हैं और एक्सोथर्मिक में एनर्जी हमें मिलती है। अंडरस्टूड? और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? इन दिस सॉलिड, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड, सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। बट सपोज मैं जिस सॉल्यूशन को टेम्परेचर दे रही हूँ ताकि उसके अंदर कोई सॉलिड मिक्सअप हो जाए, अब मैं उसी के अंदर क्या होने लगे कि इसी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होने लगे कि ये सॉल्यूशन एनर्जी रिलीज करने लगे। जब ये एनर्जी रिलीज करने लगेगा तो यहाँ से दी हुई एनर्जी का कोई मतलब है? नहीं होगा। मतलब हम एनर्जी भी दिए जा रहे हैं और ये रिलीज किए जा रहा है। तो क्या हो रहा है? वो हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स द सॉल्यूशन इज गिविंग एनर्जी, ये अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है। और जब ये एनर्जी बाहर निकालता है तब क्या होता है? सॉल्यूशन फिर से कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, डिवाइड हो जाता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। इसकी वजह से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहे होते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। दिस इज द टर्म विच वॉज एक्सप्लेन्ड बाय ली चैटरलियर, द प्रिंसिपल। What he asks that if the endothermic reaction take place, the temperature will increase and the solubility will increase. And if the exothermic reaction will take place, the temperature will increase but the solubility will decrease. Now I talk about the pressure. So there will be no effect of pressure on solid in liquid because सॉलिड और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी इतने पास होते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। दैट्स वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस। नाउ हियर यू कैन सी वन न्यूमेरिकल, दैट इज इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for the N2 at 293 Kelvin in 76.48 bar. अब now in this question what I have given, मुझे क्या क्या मिला हुआ है पहले वो लिखेंगे। Firstly I am having pressure and the value of KH, Henry constant. So means I am having the value. So I have to find out the moles of N2 first. मैंने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल ली। तो here is the value of mole fraction of N2. But I have to take out the moles of nitrogen na. So what I have written? I have written if n moles of N2 are present in 1 liter of water. तो जब I know the formula of mole fraction. What is the formula of mole fraction? Moles of solute upon total moles of solution. So I have written this also here. So now I am having the moles of water. So I'll just put the values and find out the moles of nitrogen. Okay, I think this is clear to you. And now this one is second question. You can see what is written here. Here is written at what partial pressure oxygen will have a solubility of 0.05 gram liter inverse in water at 293 Kelvin. Henry's constant KH for oxygen in water at 293 is 34.86 Kelvin bar. Assume the density of solution to the same as the solvent. Calculate the mole friction. अब देखो in this हमें partial pressure भी निकालना है, mole friction भी निकालना है, और what they are giving just the Henry constant. कुछ नहीं है, weight of solute given है, बस कुछ नहीं है हमारे पास। मुझे मोल फ्रिक्शन निकालना है, कैसे निकालूँ? ना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ना मोल्स ऑफ वाटर है। हाउ कैन आई फाइंड आउट?
बट उन्होंने वेट दे रखा है, तो हम वेट से मोल्स निकाल सकते हैं ऑक्सीजन के? यस, निकाल सकते हैं मैम, क्यों नहीं निकाल सकते? बट वन लाइन दे आर स्पेसिफाइंग दैट अज्यूम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी सेम ऑफ द सॉल्वेंट। हमें सॉल्वेंट की तरह डेंसिटी माननी है। सपोज मैंने डेंसिटी मानी 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैं मानूंगी 1000 ग्राम। इसको डिफाइन करते हुए अगर मैंने लिखा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम, तो कुछ गलत नहीं है। और अगर मैं लिख रही हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो भी कुछ गलत नहीं है। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन आई हैव ऑलरेडी गिवन, तो आई माइनस फ्रॉम 1000। क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, इसलिए मैं इसको निगलेक्ट करते हुए 1000 ही लूँगी। देन व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट जनरली पुट ऑल द वैल्यूज। मोल वाटर निकाल लिया, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, मोल फ्रिक्शन के फॉर्मूले में सारा कुछ रख दिया। जब मोल फ्रिक्शन निकल आया तब मैंने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दी। बाय दिस यू आर एबल टू सी ऑल दी बाय दिस यू कैन फाइंड ऑल दी numericals which you are willing to solve. Okay, now I end up my class here. Take care, stay safe at home.